Welcome all to Divine Space with Divine Souls. So today we have one more healer coming and sharing stories. She is a member of Golden Sunrise itself, and she has many stories to tell. She's a very energetic person, a lively person who is always ready to learn also, to give also. Tell me, ma'am, when we have to start this? I am ready. This is what is always on her toes. So come, let's connect to her and hear from her. Who is she? What is she? And what is she doing? Come, let's connect to her. Welcome you all to Divine Space with Divine Source. And today with us, we have Lippy Bala. Okay, welcome Lippy Bala. I'll just give you a brief intro about her. Lippy, she is an energy life coach. She has developed her own tarot cards, which are really wonderful. I really love them. She has been taking sessions with that also, and people have really loved that. She's a teacher by profession. Of course, now she's completely into healing and teaching different healing modalities also to others. She's been a part of many healing sessions conducted by Golden Sunrise, and she has also actively participated in training also. Whatever new she would learn, she would share with the group, and she has even conducted many wonderful sessions on chakra healing, tapping healing. These are some of them. So we'll hear more from her itself. So over to you, Lippy. Lippy, I would like you to share a brief journey about your journey, how it is, how you became a teacher. Did you wanted to be a teacher or it was natural? How it came out and how you got into healing and those experiences. So thank you so much, ma'am, for calling me here for this session, for this wonderful, talk, where people are actually not aware of the things that if you are in a real world where you are doing corporate work or you are into IT sector or you are into teaching line or in any other profession, they can really switch into healing or not. This is one of the question which people are facing, and the myth is that you cannot join healing because you have to be psychic and you have to another senses apart from your five senses, your sixth sense should work, and you have to go for long hours of meditations and so many things, and so many things are there on social media platform. But today you have given me this space that I should share that actually it is a myth. You healing does not connect you from your background, that you are a lawyer, you are an IT profession, or you are from some other industry. For healing you need to have that gist, that willpower, that mindset, that yes, I want to do some revolutionary thing with myself. I want to explore myself, I want to know about me. That is what made me moved into this healing modality, healing nature, learning different kinds of modalities related to healing. Just you mentioned like tarot. So my journey actually started with tarot only. But how I connected to tarot was very interesting. So the journey started on a very painful note because my father was going through cancer, and I being belong to a family, Hindu family, where we keep on doing rituals, religion, everything we follow, and we are शुद्ध हिंदी, जिसे बोलते हैं ना कि घर का खाना खाने वाले लोग, सुबह जल्दी उठना, अपना कसरत करनी या go for a walk. That was the routine I followed, and my parents used to do that same. But my father passed away with cancer, and that was the point where I was totally down. The question was why? If we are doing all the things correctly, then why he's suffering so much during that time, the last phase of his life. So even this why, this question hit me very badly, and I was into depression. This is I am opening here only, I have never shared this before. Maybe it needs a lot of guts to share this thing, but I tried to attempt suicide also 2 times, but I was saved. Maybe because I it was into my fortune that I have to go into healing. So when I was into depression, one of my very close friends, she just referred me to someone who, that lady, what she do is she has a skill of having dreams. Yeah. So she said that go talk to her,
and understand why you are suffering from this phase. Because my father was my back support, and my mother passed away way back. So I was totally all alone. So I connected with her. She, apart from all other readings, she said that you are connected to tarot and you have to be in tarot in this lifetime. That was the first thing about tarot I have heard from her mouth. I was not aware of what is this tarot. And I said, what is that? What is that word which you said tarot? ये क्या होता है? तब she was like कि now it's your calling. You will eventually fall on tarot. Just wait and watch. And I swear, within a month, I enrolled myself into tarot. Okay. I was not aware of it, but after 6 months, I was aware of tarot. I learned it by heart because somewhere वो जो घर के दिए हुए वो थे ना कि एक चीज पकड़ ली तो उसे प्रॉपरली करना है, उसे समझना है. तो आई वॉज टोटली इमर्स्ड इन टू टैरो 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 थ्रू आउट द डे. आई वॉज इन टैरो 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 बिकॉज मुझे लग रहा था इट्स समथिंग कॉल्ड एज कॉलिंग. कॉलिंग इज देयर. I have to follow. मेरे भगवान ने मुझे ये भेजा है because I was a very person who is into religion and all those things, व्रत करना and ये वो सब, because I have seen that in my family. So this is how I connected myself into this niche, into this modality, and my journey started into healing because my guru from Sonia Sharma, I have learned this modality from her, and there she initiated the students to Reiki. So from tarot, I was connected to Reiki. And then the journey begins. Then I moved into numerology. I understand numbers because I was finding that one answer that why my father passed away because of this bad disease. So Corona, at that time, Corona was there and we suffered a lot, not mentally, but financially and emotionally, everything because of कोरोना हम हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे थे, घर पे किसी को ला नहीं पा रहे थे, हमें कुछ पता नहीं था कैसे मैनेज करना है. एंड जब भी थोड़ा मौका मिलता था तो समहाउ कुछ ना कुछ करके अरेंज करके वी मूव टू हॉस्पिटल. तो वो एक 1.5 साल जब ही वॉज माई फादर वॉज ऑन बेड, हम आई वॉज इन टोटली ट्रोमा कि करना क्या है, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें, हाउ टू मूव फॉरवर्ड. एंड दिस वन क्वेश्चन मेड मी मूव इन टू दिस healing industry. From where there I started my journey. And throughout my journey, I'm still a student. I'm still learning. It's like मुझे लगता है कि ये लाइफ मेरी कम है, इतना कुछ है सीखने को और मुझे कुछ भी नहीं आता है अभी. And I started exploring myself not only through healing, through energy exercises, through tarot, through connecting tarot through numbers, and now I'm working with tarot to attach to the health issues. So I'm also working on this, that how tarot tells you about your health issues and what are the exercises I can give to my clients or audience so that they can heal their health issues. Because whatever you say, कुछ भी दुनिया में कह लो, if your health is fine, your wealth is going to be fine. That's Health is must. I have understood this because I have seen when my father was not healthy, the first thing which went away from my hands was my wealth. Everything was going into the pockets of doctors and chemotherapists, oncologists, and searching medicines, Ayurveda, my wealth was going like my father's health. And I very much, मतलब मेरे अंदर ये बात जा चुकी है कि if you are healthy, your wealth will be there with you. आती जाती रहेगी, ऊपर नीचे होता रहेगा, that is fine. But your health is must. that's what the saying is, that health is wealth. So it's going very well what you said. So even my audience, those who are going to listen to this podcast, they will very well resonate. जिनकी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे एंड राइट नाउ ऐसा फेस भी चल रहा है हमारी दुनिया में कि हेल्थ इश्यूज का लेवल इतना इंक्रीज हो गया है. Only the thing is that because they are not understanding this concept that your health is your wealth. People are running after पैसे कमा ले पैसे. Yeah, it's a necessity, I understand. And very मतलब priority में बहुत high level पर है. But still, apart
उसके ऊपर आपकी हेल्थ है. If you're healthy, people are going to come to you. That is what I have understood. After Corona, I have started this journey of mine. I started doing tarot. First, I do for myself. मैंने journey ऐसे ही शुरू किया अपने लिए daily करना. And बहुत सारे मैम, सीरियसली बहुत सारे मैजिक होने लगे लाइफ में धीरे धीरे धीरे. आई स्टार्टेड डूइंग रेकी, एंड आपको पता होगा, यू आर ऑल्सो ग्रैंड मास्टर इनटू रेकी, कि 21 डेज का वो जो फेस होता है अपने चक्रास को क्लीन करने वाला है. आई हैव एक्चुअली, मैंने महसूस किया मेरी बॉडी कैसे रिलीज कर रही थी वो नेगेटिविटी, शायद जो मैंने पापा के टाइम पे लोगों से अट्रैक्ट करके अपने अंदर रख ली थी. बिकॉज ऑफ दैट मैं डिप्रेशन में चली गई. आई ट्राई टू गो फॉर सुसाइड ऑल्सो. सो मैंने देखी है वो एनर्जीज अपनी बॉडी से रिलीज रिलीज होते होते हुए, हुए. हाँ. मेरी बॉडी शेक करती थी और मैं डर जाती थी. लिटरली आई वाज इनटू फेयर कि मैं ये किस कर रही हूँ. एम आई डूइंग रॉन्ग, एम आई डूइंग राइट? सो दीज वर द मिथ्स विच ना पीपल आर आल्सो सर्चिंग कि ये रॉन्ग और राइट. एनर्जीज आर नेवर रॉन्ग. दे आर जस्ट letting you understand ki understand me. When you start and understanding your energies, definitely your life will move. Your mental status, emotional status will move. So this is how I learned one after the another modality. I have learned EFT also, tapping sessions, why body is connected to emotions, what are the points on your body that you tap and it just release. And it really happened. When you do these things consistently, your body will tell you, देखो मैं ये नेगेटिविटी अब छोड़ रही हूँ, वो बताएगी आपको. हाँ, लैंग्वेज डिफर हो सकती है, बट yes, this is the medium of your body to convey the things that you were holding something. Now is the time to release. And till date, even I am enrolled into one or the other modality. I have enrolled myself into Siddha Yoga. So I am now following Guru Pashupati. So I'm a student of his, and I'm still understanding myself. There is so lot many things that I have to understand, and the way he's conveying the things, actually it is connecting to the science. Maybe it's spirituality, the way he's sharing, but in our modern language, it is actually the science. People are differentiating, but there is no difference between science and spirituality. That's So true, actually. जो मेरी जर्नी रही है मैम, उससे मैंने यही सीखा है. मैं पहले रिलीजियस थी. वो फेज था जब मेरे पेरेंट्स के साथ थी. The moment I turned into healing, I have understood religion is nothing, just your own spirituality. Now, if I'm spiritual, I will say I'm not 100% spiritual. इतना तो मैं नहीं कर सकती हूँ because daily routines भी रहती हैं. But that peace which I have attained after doing these sorts of things, that Reiki and then Lama Fera, then Magical Awakening, and then Ho'oponopono. Yeah. Now I have done energy medicine also, EFT. Now I am into Siddha Yoga. I am learning those things, understanding those things. Ki what is the four phases of moon? How is the body connected to moon? So now I have understand that what matters is peace. When you are happy from inside and you know yourself, that is the gist of this till now. The journey that gave me the gist is know yourself. Every single person is unique. आपके खुद के एक्सपीरियंसेस भी डिफरेंट रहे होंगे मैम. आप भी इस जर्नी पे हो, आपके डिफरेंट होंगे, मेरे डिफरेंट होंगे, हमारी ऑडियंस जो सुन रही है, आई एम श्योर वो भी रेजोनेट करती होगी कि एक्सपीरियंस डिफरेंट है. लेकिन डिफरेंट कहाँ पे है? हमारी बॉडी के लेवल पे. दैट्स इट. क्योंकि आपकी बॉडी एक डिफरेंट लुक की है, मेरी डिफरेंट लुक की है, एंड एक्सपीरियंसेस आर डिफरेंट, बट अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू गिव अस पीस inside. Energetically, we all are connected. Energetically, yes. So this is how I started my journey. I started taking sessions, and I still remember it's been more than 2 years that I was in search of that machine जो aura reading करती है. And I come across that you have that machine, and that is how I connected to you, and you shared your group about your group, and that how you are operating in Mumbai, and
you're taking aura readings and all that, and I was so amazed कि मैम के पास है, एटलीस्ट इंडिया में किसी के पास तो है फॉर दैट से अंडरस्टैंड करने के लिए. बिकॉज अगेन द क्वेश्चन वाज दैट कि जब भी मार्केट में आप जाओ ना तो लॉजिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं क्योंकि स्पिरिचुअलिटी. लोगों को चाहिए प्रूफ, चाहिए कि अरे नहीं आपने, क्योंकि हीलिंग उनको दिख नहीं रही है, वाईफाई नहीं दिख रहा है, फोन पे बातें कर रहे हो मोबाइल से इतने अबाउट में यहाँ वहाँ कनेक्शन कर रहे हो, यू आर एक्सेप्टेड दैट. बट देन यही चीज जब हम बोलते हैं तो वो एक्सेप्टेंस नहीं आता. बट व्हेन यू शो देम लाइक यू नो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को लाओ और दिखाओ उनको, देन यू शो देम कि सी दिस इज योर एनर्जी लेवल, हाउ इट इज शोइंग लाइक यू नो, एंड दिस इज हाउ बिफोर एंड देन आफ्टर. ये तुम्हारी ही एनर्जी, तुम ही हो, तुम्हारी फिंगर से ही हम लोगों ने किया है. तो वो बहुत फर्क पड़ता है. एंड मुझे याद आया लाइक वी कनेक्टेड थ्रू दैट, यू वर सर्चिंग लाइक एन आई थॉट के ढूंढो मत मेरे पास आओ, आई विल गाइड यू. And that's why we how we connected. And like the day I met you, I felt there is something in this girl, like you know, I need to connect to her, I need to give her a platform where she can grow. I really felt that, like and then मैंने इसलिए बोला कि इमीडिएटली ग्रुप ज्वाइन करो हमारा, एंड तुम्हें जो मन करता है करो. एंड बट तुमने तो कमाल ही कर दिया. तो मुझे तुम्हारा ग्रोथ देख के बहुत बहुत अच्छा लगा, एंड आई रियली फेल्ट वेरी नाइस. बट मुझे एक थैंक सवाल यू. है कि ठीक है, ये होता है कई हीलर्स में. अभी जैसे तुमने कहा कि तुम्हारा घर काफी रिलीजियस था, चीजें थी, एंड तुम एक टीचिंग प्रोफेशन से आती जहाँ जॉब कर रही हो प्रॉपर शादी की. तो कहीं ना कहीं ये घर वालों का या फ्रेंड्स का किसी का ये इश्यूज है कि ये क्या कर रही है, ये तू क्या चीजें हैं एंड ऑल. सो हाउ वाज द एक्सेप्टेंस फॉर फ्रॉम पीपल अबाउट ऑल दिस व्हेन यू गॉट इनटू दिस? So frankly speaking, still they are digesting. They have not accepted me fully because I belong to Punjab and people here हाँ. are more into, business of show off. They hardly feel like, for them, religion is everything. हम्म. पंडित जी ने बोल दिया ये पूजा होगी तो दैट मीन्स ये पूजा हो गई एंड एवरीथिंग इज डन. इंटरनली आप चाहे कोसते रहो अंदर बैठे पंडित जी को कि पंडित जी ने इतने पैसे ले लिए, पंडित जी ने ये करा दिया वो करा दिया. So for them, if I am into meditation, I am doing meditation. For them, it's like कि क्यों करना है, क्यों जानना है तुमको अपने बारे में, बायोलॉजी पढ़ो ना तुम्हें सब पता लग जाएगा. एंड आई वाज लाइक इट्स नॉट अबाउट बायोलॉजी, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ. देयर इज अ डिफरेंस. बट यस, आई टेल देम कि आप अपने हिसाब से समझो, मुझे अपने हिसाब से समझने दो. दैट इज हाउ आई हैव टू बी वेरी लीनियंट. समटाइम्स दे गेट वेरी हार्ड ऑन मी, but I have to, make myself understand because I am nobody to make them understand. Yeah. हीलिंग में आके एक बात मैंने बहुत अच्छे से सीख ली मैम, दैट की एवरी सोल इज ऑन जर्नी. यू आर nobody to tell them कि इससे कनेक्ट करो, तुम स्पिरिचुअलिटी में आओ. नो, द राइट टाइम विल कम, दे विल They will डेफिनेटली come. कनेक्ट टू द स्पिरिचुअलिटी. अगर मैं वो उनको बोलती रहूंगी तो वो इट्स लाइक कि वो भैंस के आगे बीन बजाने वाला बात है कि दे विल नॉट अंडरस्टैंड. क्योंकि उन लोग को एंड फॉर स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंचे भी नहीं है ना जिस पे तुम पहुंची हो. तो उन लोग तो वो लेवल से देख रहे हैं जब जहाँ पे तुम तभी थी. हाँ, तो मैं उन थी लोग तो पहले. अभी तक वही लेवल से देख रहे हैं, तो वही सोचते हैं कि लाइक यू नो कि इसका कुछ और इंटेंशन होगा या इसका कुछ ये होगा. तो वो अलग, उन लोग उसी एंगल पे ही सोचते हैं अभी. बट ठीक Definitely, है, people here are जिसका not जैसे कहा aware of टाइम this. आता है वो समझ जाते हैं. Yes, when the right time will come, they will understand. Now my kids appreciate my work. That yes, अच्छा. मम्मा को ये आता है, ये करना चाहिए, मम्मा ये कर दो. Like I use switch words sometimes. उनको cold रहता है, headache रहता है. हाँ. I make them do energy exercise. I make them do हम्म. certain things, and so they appreciate. Now my son, I am writing this number here. ना, he started हाँ. copying me. He started writing है ना left अच्छा. side पे ऐसे circle डाल के. One day I saw, I said, why you are writing it? आपने भी तो लिखा है. And I am like, there is a reason why I have written. And he हाँ. was very curious to understand that reason. So gradually this thing is going into him. Yeah. मैंने उसे कुछ नहीं बताया, but he is observing every day. My mother do meditation. She sits and she fight for her, time कि मुझे meditation के time अब disturb नहीं करना. This is me time. अब उसको भी होता है phone. The way I say ना, it's my me time, and Me now too. he says कि ये mobile का time है. It's my me time. मुझे mobile दे दीजिए. It's my me time, and I'm like कि you are learning from me only. Good. One day you will also understand. So yes. अगर इस जर्नी को कंपेयर करूँ तो फैमिली आगे से लीनियंट हुई है, बट आई हैव टू बी वेरी पेशेंट इन दिस जर्नी विद माय फैमिली. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इट्स लाइक
Now they are slowly and slowly turning into that phase that, okay, if she's okay into this, then let it be. So how was it with school and with your friends? How was their acceptance with it? So they actually, when I moved, because of Corona, I left my job way back Acha. now. It's been 10 years. And now, to when I tell them that I'm into this industry and they says that, what are you doing here? Go from here now. Punjab में तुमको कोई नहीं पूछने वाला. Go to other part of, India. Pune, Bangalore, Mumbai, people understand there. They are open for these things. Here, people Yeah. are not. They are into job category. कि सुबह 9 to रात के 9 बजे तक जॉब करना है and that's it. फिर family time and सो जाओ. That's it. For them, meditation is just waste of time. That's But well they are said. happy for me. At the Acha, same time, they good. are happy for me. Ki, okay, my friend circle is happy. At least you are into some different thing. कुछ Different. different कर रही है. कुछ तो है जो तू different कर रही है. That's it. मतलब they are happy into this only. But they don't want to try for themselves. But do they come with their problems to you? कह रहे मेरा ये problem है, कुछ है Yeah, क्या yeah. solution? They come and they take the solution, but they never apply. Because these things, they need a consistency. And consistency is the major question. For the job people. Saturday, Sunday करवा लो वो okay है. लेकिन Monday onwards for them it's like we have to rush for job, काम करना है, बच्चे देखने हैं and family देखना है. That's it. I know that. I think that was the environment. That's why you got felt very good when in our group, because in our group everyone is from different state, from different area, from different country. So uh, people really liked you like anything. I'm telling you. They still say कि हमने लिपि के सेशन में बहुत नॉलेज भी गेन किया. ठीक है, हीलिंग सब लोग करते हैं, लेकिन उसने जो हम लोग को नॉलेज भी साथ में शेयर किया, बिकॉज एज यू लर्न एवरीथिंग इन डेप्थ, सो यू शेयर दैट नॉलेज ऑल्सो व्हेन बिफोर टेकिंग द सेशन. So if you see others interviews also I've taken, they have really appreciated you very much. So you are really wanted everywhere. वो जैसे बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वैसा वो होता है. बट ये है कि you are really loved and accepted everywhere. Thank So you so don't much, stop ma'am, this for work. this love. Continue and keep growing also in this. Sure, sure, ma'am, definitely. As I said, जर्नी तो अभी चल ही रही है. अभी तो बहुत लंबी जर्नी है. जितना और सोचती हूँ उतना ही समझ लगता है अभी तो और भी कुछ है, इसमें और भी है, इसमें और गहराई है. But till now, what I have learned is your internal peace is very necessary. मेडिटेशन, कोई भी मोडालिटी ले लो आप हीलिंग की, चाहे टैरो कर लो, मेडिटेशन कर लीजिए, एनर्जी एक्सरसाइजेस. द फर्स्ट आउटकम यू विल गेट इज इंटरनल हैप्पीनेस, दैट पीस, दैट calmness. Yeah, that's And that is where you stop, reacting to things. You start responding. आपको पता लग जाता है कि बिकॉज दे आर नॉट एट माई लेवल, सो नो नीड टू रिएक्ट, दे लेट इट बी, हो जाएगा ठीक. विद द टाइम दे विल अंडरस्टैंड योर थिंग्स. So yes, this is the shift of energy, I would say, कि मेरी energies जो तब से कोरोना से लेके अब तक, I have seen a drastic change in my own self. मैजिक देखे हैं मैंने अपनी खुद की लाइफ में. I would like to share one, my own experience here. कि when I was learning this tarot thing, so हमेशा क्या होता था, मैं weekly अपने लिए tarot करती थी कार्ड. So हमेशा फॉर नियर अबाउट 1 year मेरे लिए सेम कार्ड पॉप अप होता था. oh yeah. सेम कार्ड. और मैं कई बार जानबूझ के ना उस कार्ड को साइड पे रख देती थी कि ये नहीं मेरे को देखना है कार्ड. हाँ. बट फिर भी जब मैं स्प्रेड्स करती थी अपने लिए, वो स्प्रेड में कहीं ना कहीं एक पोजीशन में दैट कार्ड यूज्ड टू बी देयर. एंड दैट कार्ड वाज ऑलवेज अबाउट इंटरनल जर्नी. Oh. Go for it, internal journey. You're not supposed to socialize right now. जो हाँ. उसका जिस था उस कार्ड का, कि अभी सोशल नहीं होना है, अभी अपनी चीजों को नहीं शेयर करना है. जस्ट लर्न फर्स्ट, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन लर्निंग. तो ये चीज मुझे तब इतना रेजोनेट नहीं करती थी, लेकिन अब रेजोनेट करती है कि व्हाई आई वाज इन माय इंटरनल जर्नी, बिकॉज आई वाज डेस्टिन्ड टू बी हियर. मे बी मैं ये कहूंगी कि हाँ, मेरा इस जर्नी पे आना एक वेरी पेनफुल इवेंट, मेरे लिए वो बहुत पेनफुल इवेंट रहा है. But the moment I have entered into it and I have understanding healings, energies क्या होती हैं, frequencies कैसे होती हैं,
वाई यू नीड टू टैप योर बॉडी, आपकी बॉडी कहाँ एनर्जीज को स्टोर करती Yeah. है, एंड द सिंपल थिंग इज यू टैप देम एंड योर बॉडी विल रिलीज इट। इससे सिंपल और क्या हो सकता है? यू जस्ट टैप ओवर हियर एंड योर बॉडी विल रिलीज। एंड आज के जमाने में लोगों को लगता है इतना आसान, तो ये गलत ही बता रही है। इसका हाँ, मतलब आसान चीज तो हम डाइजेस्ट ही नहीं करवाते ना, हमें डिफिकल्ट बताओ तो लगता है हाँ इसको तब पता है, देन शी हैज द नॉलेज। सो ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ में मैजिक हुए हैं। जैसे 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 मैंने चक्रास के बारे में अंडरस्टैंड किया, तो आई कम टू नो कि हमारे टंग के ऊपर भी जो अपर पैलेट होता है वहां हाँ, पे एक चक्रा होता है जहां से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आई ट्राइड इट मेनी टाइम्स, एवरी टाइम इट वर्क, एवरी आई वेंट टू गोल्डन टेम्पल, मैंने गोल्डन टेम्पल जाना था। तो इट वॉज लाइक कि मैंने अपने चक्रास के थ्रू प्रोग्रामिंग की कि आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां पे रश नहीं चाहिए, मैं लैंड इतने बजे लैंड करना चाहती हूँ, मैंने टाइम दिया इतने ओ, बजे मुझे माथा टेक के वापस आना है, एंड मुझे बस जो है वो टाइमली मिल जाए, एंड बाय 5:15 आई शुड बी बैक एट होम। मैं मॉर्निंग 9 बजे निकली थी, एंड यू वोंट बिलीव सब कुछ वैसा ही हुआ। व्हेन आई रीच्ड देयर ना, वहां पे इतना रश था, मतलब मुझे लग रहा था तो 2 से ढाई घंटे तो जा ही रहे हैं मेरे, मतलब तो क्या मेरा आज का शेड्यूल, मैं टाइम पे नहीं घर पे आ पाऊंगी। बट आई डोंट नो, मैजिक हैपेंड। एक सरदार जी आए, उन्होंने बोला कि बहुत गर्मी हो रही है, ये जितनी भी लेडीज हैं इनको आगे भेजा दो। मतलब मैं सबसे एंड में थी डोर पे, हम्म, एंड मैं एक मतलब हार्डली इन 5 मिनट्स आई वॉज इन फ्रंट ऑफ दरबार साहिब, और सबसे पहले दर्शन किए, एंड आई वाज बैक। मैंने लंगर भी खुल के खाया, एंड मुझे बसेस भी मिली टाइम पर, ऑन स्पॉट सब कुछ। बाय 5:20 आई वाज इनसाइड माई। सो बहुत सारे मैजिक देखे हैं मैंने। जैसे जैसे शेयर किया, आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद एंजल्स ऑल्सो। सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम, आई टॉक विद देम ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो ये मेरी लाइफ के अचीवमेंट्स हैं थ्रू लर्निंग दीज मोडालिटीज। जैसे मेरे गुरु ने मुझे गाइड किया, या जिससे भी मैंने लर्न की वो मोडालिटी, आई अप्लाइड देम, और आई अप्लाइड देम विद कंसिस्टेंसी एंड फेथ ऑन माई गुरु। that's आज क्या very हो रहा है? important. These two हाँ, factors are very हाँ, आज क्या हो रहा है, लोग एक को भी सुन रहे, दो को भी सुन रहे, तीन को भी सुन रहे, फॉलो किसी को नहीं करते हैं रिलीजियसली, दे डोंट फॉलो एनीथिंग, और उनको रिजल्ट नहीं मिलता, आउटकम नहीं मिलता, एंड देन दे क्वेश्चन that you are wrong, spirituality is nothing, there is nothing, you can't change your life, whereas I see magic every day in my life. If I have that eye, you will see that magic. ये क्या होता है, That लोग is बोलते what हैं कि I अच्छा ठीक है तुमने कहा तो हम लोग कर रहे हैं, बट इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन, एज यू सेड कि नहीं मुझे करना है और मुझे फील करना, मुझे देखना है कैसा, लाइक व्हेन इट कम्स टू यू एंड देन ठीक है करने में क्या जाता है, मैं कर दी हूँ एंड दैट इन्होंने कहा है मुझे अच्छा लगा, टेक इट विद दैट फेथ एज यू टेल बोल के, एंड फिर वो करो, and then you forget and see the magic and miracles, like because every healer has those magics and miracles to share. So how come these magics and miracles are coming? Because we have felt them. We have that trust on this universe. We have understood this energy. yes, we actually understood that you have to be have that open eye. मैजिक ऐसा नहीं कि बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, गाड़ी भर के आ रहे हैं, ऐसे मैजिक्स नहीं होंगे, लेकिन वो जो छोटे छोटे मैजिक आते हैं ना आपकी लाइफ में, लाइक मैंने रोंडा बायन की वो बुक पढ़नी शुरू की, उसमें उन्होंने हाँ, मैजिक बोला था कि हाउ टू मैनिफेस्ट। तो yeah. मैंने सेम वैसे डिट्टो वैसे ही किया फॉर 7 डेज की मुझे एक बटरफ्लाई ब्लू कलर का नजर आना चाहिए। ऑन 7th डे आई सॉ दैट, मुझे वो नजर आई, एंड आई वाज सो हैप्पी कि इट्स वर्किंग। बट यस, मेरा फेथ था कि व्हाट शी सेड इज गोइंग टू वर्क, माई बिलीफ वॉज देयर। मे बी द थिंग्स हैपन डिफरेंटली, उनके लिए डिफरेंट वे से हुआ होगा, कोई किसी और ने एक्सपीरियंस किया होगा तो डिफरेंट वे से होगा। एज आई सेड कि हमारी एनर्जीज डिफरेंट है, हम डिफरेंट हैं, लेकिन जो मैजिक जो आउटकम है वो सेम ही रहेगा। सिमिलरली मैंने देखा, उसके बाद आई ट्राइड कि मुझे तो भाई एंजल चाहिए। मैंने बहुत सुना है कि हाँ, आपके पास एंजल्स होते हैं, आपके एंजल्स रहते हैं, आपके एंजल्स। एंड यू वोंट बिलीव मैम, फॉर 1 ईयर, फुल 1 ईयर आई वॉज कंसिस्टेंट इन कॉलिंग माई एंजल। okay. मुझे जो मैंने बुक्स में रीड किया था उसमें था कि 7 दिन कर लो, कोई सम से 10 डेज, 21 डेज, 1 मंथ। इट टुक मी अ ईयर, 1 ईयर। आई मैनिफेस्टेड माई एंजल, I started talking, he started conveying things to me, do like this, don't do like this. कई बार तो ऐसे होता था कि मैं
जस्ट आई एम अबाउट टू डू दैट थिंग और मुझे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आ जाता था, नो स्टॉप इट, यू आर नॉट गोइंग टू शो दीज थिंग्स राइट नाउ, दिस इज नॉट द राइट टाइम। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि क्यों ये करना बंद कर दिया, या क्यों ये बात नहीं बताते हो कि आपको ये आता है, बिकॉज देयर इज सम रेजिस्टेंस। मुझे अभी वो परमिशन कह लो, एक वर्ड कह लो तो, लैक ऑफ गुड वर्ड्स की एक भी परमिशन नहीं है दैट यू शुड शेयर दीज थिंग्स। बट यस, मैजिक इज देयर। आई एम, आई विटनेस एवरी डे। आई एम टेलिंग यू द थिंग। अभी मैंने जैसे गुरु जी को ज्वाइन किया है, तो उन्होंने हमें एक हीलिंग मोडालिटी सिखाई है, बट ही हैज नॉट अलाउड अस टू शेयर टू द वर्ल्ड, दिस इज फॉर अस ओनली। So I was suffering. My son was also suffering from bad throat. I did it for once only. He was sleeping and I did it, and he was fine. वो सारी रात अच्छे से सोया, सुबह अच्छे से उठा, एंड ही वाज लाइक कि मम्मा रात को तो बहुत दर्द हो रहा था, अभी तो सब ठीक लग रहा है, पता नहीं मैंने क्या कर लिया रात में। एंड आई वाज स्माइलिंग कि हाँ ओके, गो अहेड, यू आर फीलिंग फाइन ना, दैट इज एक्चुअली That is व्हाट इज रिक्वायर्ड। So this is only because I started believing those things, and there is a magic. Spirituality is just magic. Magic which is in your own hands, which actually resides in your own belief. This is my learning till now. If you believe, you actually can work. Yes, it takes time. मैं नहीं कहूंगी कि बहुत जल्दी होता है, ऐसे ही करने से हो जाएगा, नहीं, it will take time. तो मैं मेरे भी ऐसे ही काफी एक्सपीरियंसेस रहे हैं and काफी हिलस की ये हम लोगों की जर्नी में रहते हैं, क्योंकि हमें यूनिवर्स के साथ हम कनेक्टेड है ना, तो यूनिवर्स हमारे हर तरीके से मैसेज देता है, हम जिस भी एंगल में हो। लाइक यू सेड कि मेरे भी कार्ड रीडिंग्स में व्हेन माय सिस्टर वाज नॉट कीपिंग वेल एंड तो मेरा कार्ड, मैं सोच रही थी ना कि व्हाट वुड बी द हीलिंग, व्हाट शुड आई डू फॉर हर। तब मैंने इतने सारे मोडालिटीज नहीं सीखे थे, कुछ थे जो थे, एस्ट्रोलॉजी नहीं बोले। बट फिर उसमें कार्ड में एक ही कार्ड आता था, डू मोर रिसर्च, एक ही कार्ड प्रॉपर। फिर मुझे लगा कि मतलब ये मोडालिटीज की ठीक है, मुझे कुछ और स्टडी करना पड़ेगा। फिर मैं उसमें और क्रिस्टल्स के इसमें डीप में गई, फिर कुछ क्रिस्टल्स लेके आई, फिर उसको हीलिंग किया, फिर वही कार्ड है। तो ऐसे कैसे करते, जब मैंने स्विचवर्ड्स एनर्जी सर्कल्स को पूरा समझ गई और मैंने उसके लिए जब बनाया एंड तब कि आया कार्ड यू आर रेडी, सीधा कार्ड चेंज हो गया, यू आर रेडी, एंड मैं समझ गई कि दिस इज द थिंग विच इज गोइंग। तो चीजें हमारे साथ ऐसे होती हैं। एंड इवन जैसे लाइक मैंने दीपक चोपड़ा का 21 डेज का मेडिटेशन उस टाइम ऐसे मेरे फ्रेंड ने बोला कि हम लोग कर रहे हैं हमारे ग्रुप में, तो हम लोग आप भी ज्वाइन, तुम भी ज्वाइन करो, ठीक है कर लेती हूँ ना, मेरा क्या जाता है क्योंकि मुझे पता था उसके बारे में कि क्या है, तो मैंने कर लेती हूँ। एंड वोंट बिलीव के कभी कभी हम अपना भी क्लेंजिंग नहीं करते हैं, रह जाता है, तो वो उसमें मेरा हो गया। एंड मैं जो बुक लिखने का प्लान इतने सालों से कर रही थी, लिख के छोड़ दिया था आधे में, नहीं किया। एंड दोस 21 डेज इट, बस मेरे को करना है, वो आ गया मेरे अंदर। और वही नहीं, मैं एक ही बुक लिख रही थी लेकिन सब हैफेज हो रहा था। फिर मेरे को एक मैसेज कहीं से आ गया कि इफ यू आर राइटिंग अ बुक, उसको ऐसे डिवाइड करो, ऐसे करो तो बुक अच्छा है। एंड देन फिर मैंने आराम से लाइक मेरे बुक्स को डिवाइड किया, लाइक नो योर सेल्फ के 3 में डिवीजन किया। फिर वो माय पार्ट टू स्पिरिचुअलिटी जो आपको मालूम है, वो बुक मैंने रिलीज किया। तो ये 21 डेज में ही मेरा डिसीजन उस पे फाइनल हुए हैं। और एक बुक तो रिलीज उसी 21 डेज में ही हो गया था। सो ये है, हम लोग सबकी जर्नीज हैं ऐसी वंडरफुल। तो अ, जो भी सुन रहे हैं उन लोग जाने के, अगर आप भी आना चाहते हैं इस जर्नी में, तो हम सब हैं उनके सपोर्ट के लिए। एंड अगर कहीं ना कहीं लोगों को भी कहीं एक फीलिंग है, क्योंकि हम भी इस डाउट से कहीं कितनी बार गुजरे थे स्टार्टिंग में कि अरे ये है कि नहीं है, फिर बाहर की दुनिया का सपोर्ट नहीं, तो बट मैं चाहती हूँ लोग, आप लोग जैसे लोगों की सबके एक्सपीरियंसेस सुने एंड देन दे रियलाइज कि दे नॉट अलोन ऑन दिस पाथ, एंड वी आर ऑलवेज देयर आल्सो टू हेल्प देम। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ, किसी ने कार्ड रीडिंग के लिए, दो ब्रदर्स हैं, एक हम्म ब्रदर मेरे से रेगुलर रीडिंग लेता है, हम्म तो उसने अपने भाई को मुझसे रेफर किया। ही एक्चुअली ही इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज। सो दिस पर्सन ही वाज नॉट इनटू वो, ही इज लाइक कि इसमें कुछ नहीं होता ऐसा करके, बट ही फोर्स्ड हिम दैट आई वांट यू टू गो टू हर हम्म एंड टेक द रीडिंग्स। ओके, सो ही वाज माय मतलब हाई पेइंग क्लाइंट टू मी।
for tarot, because I did the relationship readings for for 3 months for that person. So every time the gist was this ki every time I did the reading for that person, the only sum up was put a zip on your lip. That's it. Oh. You will get sorted out. And he was like, बात क्या कर रही हो आप? Because the things were हाँ at level. And he was like कि मुझे बोलना पड़ेगा. How are you saying कि तुमको नहीं हाँ बोलना? वही तो And I was प्रॉब्लम है like, तुम्हें. I said, be silent. I told you, please shut your mouth. Things will sort out. And you won't believe, after 3 months, उसके 2 cases 0 पे आउट हो गए. The cases were over. Just क्योंकि वो चुप रहा. हाँ, केसेस से पहले उसने रीडिंग लिया और जो भी गाइडेंस आया है सेट, बट द मेन थिंग वाज ही हैज टू बी साइलेंट एंड काम. जब भी कुछ पूछना है तो कामली बताना है, नहीं बताना है ऐसे भड़क के नहीं, गुस्सा नहीं शो करना है. एंड ही वाज सो हैप्पी व्हेन ही शेयर्ड द थिंग्स विद मी कि आपको पता है ये केस में जीत गया, आपको पता है. एंड ही इज फ्रॉम हाँ फॉरेन, ही इज फ्रॉम यूके, एंड वहाँ का जो लॉ है थोड़ा डिफरेंट वे से वर्क करता है इंडियन लॉ से. एंड ही वाज लाइक कि मुझे समझ नहीं लग रहा, बट जो भी हुआ है बहुत अच्छा हो गया. एवरीथिंग वर्कड इन माय फेवर. आई सेड, आई टोल्ड यू ना, वी स्टार्टेड द जर्नी इन February एंड इन August he got the result. So he kept that patient. Yes, he moved into depression also. वो डिप्रेशन में भी कहा गया कि इसने मुझे बोलने से बना कर दिया, हाँ लेकिन माई वाइफ इज डूइंग लाइक दिस एंड दैट, मुझे ये बताना चाहिए था, इसने मुझे बताने नहीं दिया, ये वो बहुत सारी टेंशन क्रिएट की. बट हाँ द रिजल्ट वाज एक्चुअली इन हिज फेवर. सो वो एक एक्सपीरियंस जो था वो वेवी जरूर था, बट एक्चुअली मे बी कर्मा wants you also to learn something. मैंने उसको बोला, there is your learning also. It is not for your wife only. Something is yeah there hidden for you also. Have patience, have patience. And now he's like कि नहीं, I have learned how important and how difficult it is to be silent. चुप रहना कितना मुश्किल है. मुश्किल है. दैट इज व्हाट वी लर्न इन. अगर मैम आप Because रेजोनेट करते हो तो हाँ यही हम लर्न करते हैं मेडिटेशन में. वो हमें चुप करवा के बिठा देते हैं, बैठ जाओ चुपचाप से, जो भी आ रहा है उसे आने दो, बस आने दो, डोंट रिएक्ट. don't react. तो दिस इज वेयर पीपल मैंने जब न्यूमरोलॉजी की, तो मैं आपसे एक बात शेयर जरूर करूंगी मैम. होप कि हमारी ऑडियंस भी रेजोनेट करेगी इस बात से. जैसे जैसे मैं गहराई में जाती गई न्यूमरोलॉजी के, मैंने अंडरस्टैंड किया कि कैसे नंबर्स हमारी बॉडी में भी हाँ रेजिस्ट करते हैं, कैसे कैसे प्लेसमेंट है इन नंबर्स की आपकी बॉडी में. तो आई कम टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि नंबर्स जो होते हैं वो इतनी ब्यूटीफुली प्ले करते हैं आपकी लाइफ में कि समटाइम्स आप ये समझ ही नहीं पाते हो कि क्यों ये चीजें आपकी लाइफ में हो रही, बट आपकी बॉडी उसको कैप्चर कर लेती है बेस्ड ऑन दैट. तो लोगों को शायद ये अंदाजा नहीं है कि ये, जैसे लोग बोलते हैं कि 7 इज अ वेरी गुड नंबर, 9 इज लाइक दिस, एक नंबर है तो ये हो जाएगा. बट एक्चुअली ये सारी चीजें आपकी बॉडी में भी रिजाइड करती हैं, रहती हैं. जैसे मैं एक एक्टिविटी अपने करवाती हूँ, अपने जब सेशंस लेती हूँ, आई मेक पीपल की अपने टंग से अपने अपर पैलेट को जरा टच करो. हम्म तो आपको डिफरेंस फील होगा, हर जगह पे आपको डिफरेंस जो है वो फील होता है. कहीं पे बहुत हार्ड है, कहीं पे बहुत सॉफ्ट है, कहीं पे फिसलन सी है. एवरी दैट पार्ट ऑफ योर पैलेट, जो अपर पैलेट होता है, दैट इज कनेक्टेड टू अ नंबर. कहीं पे 2 बैठता है आगे, मैंने की मून, मैंने कि अगर आप वहां पे नहीं जा पा रहे तो आपका मून भी वीक है. यू हैव टू वर्क थ्रू योर मून ऑल्सो. सो इतनी सारी इंसाइट्स मिली जब इस चीज में मैं गई हूँ या न्यूमरोलॉजी को समझा है, या अभी भी समझ ही रही हूँ. अभी भी बहुत, मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत आता है, बट yes, definitely. Trust is what makes you move into this, ahead into this journey. अगर आपका ट्रस्ट नहीं है, आप एक मोडालिटी कर लोगे, 2 कर लोगे, दैट्स इट. आपकी जर्नी वहीं स्टॉप हो जाएगी. आप आगे बढ़ना भी चाहोगे ना, नहीं बढ़ पाओगे इफ यू डोंट शो दैट ट्रस्ट एंड कंसिस्टेंसी एंड फेथ इनटू दीज थिंग्स. एंड यहीं पे मैं समटाइम्स आई फील लाइक कि अगर आप भी देखो तो मैम, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन इसी तरीके से है. स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो सेज कि
डू इट कंसिस्टेंटली। और रिलीजन भी यही बोलता है कि अगर हर सोमवार जल चढ़ाना है तो हर सोमवार करना ही करना है। अगर व्रत करना है, इस सोमवार भी किया है तो 16 सोमवार रेगुलर करना ही करना है। और अगर हम मेडिसिन को बोले तो मेडिसिन में भी यही होता है कि शाम को 6 बजे चाय के बाद ये मेडिसिन आपको खानी है तो खानी ही खानी है। द मोमेंट यू ड्रॉप, आपका सर्कल ब्रेक होता है। सेम थिंग इज विद स्पिरिचुअलिटी। बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग इसको कनेक्ट क्यों नहीं करते हैं, या लोगों इस ने उसको डिफरेंशिएशन किया, लाइक यू सर टेलिंग ना कि सी रिलीजन इज समथिंग विच वी हैव क्रिएटेड एज एन, स्पिरिचुअलिटी को भी उन्होंने एक स्पिरिचुअल बोला तो लोग ना माइंड में कर मुझे इटसेल्फ ऐसे हुआ था कि मुझे लोग मेरे ड्रेसिंग से जज करने लगे कि जब मैं बोलती अच्छा तू स्पिरिचुअल है तो तूने आज जीन्स क्यों पहना है, तूने ये क्यों, लाइक यू नो, क्योंकि वो एक माइंडसेट बन जाता है तो लोगों का एक्सेप्टेंस आता ही नहीं, जो आप बोल रहे हैं हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि एक एक आईज है ना जो एक पिक्चर बना लेती है, वो पिक्चर पे उन लोग काम करते हैं। तो वो मिथ अगर जब ब्रेक हो जाता है तब एक्सेप्टेंस आ जाता है, तो वो रहता है लोगों को। और जब हम रिलीजन की बात करें तो रिलीजन इज समथिंग वो जो वर्ड भी और ठप्पा भी हम लोगों ने ही दिया हुआ है एज ह्यूमंस। हमारे यहाँ सी अगर यहाँ से वहां जा रहे हैं, वहां एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, है ना, तो वहां के नेचर के हिसाब से वहां की रिक्वायरमेंट्स और चीजें होती है, वहां का खाना वैसे होता है। अब देखोगे तो हर एक रिलीजन में हर चीजें मानी जाती है, चाहे वो श्राद्ध हो या हम लोग दिवाली बोलते हैं तो उन लोग कुछ और बोलते हैं, हम लोग एक महीने का कुछ और करते हैं, मुस्लिम लोग एक महीने का कुछ और करते हैं, क्या ये जैन पारसी लोग उन लोग कुछ और तरीके से करते हैं। तो रिचुअल है, सब सब में है वो सेम रिचुअल। ओनली थिंग इज के वो एनवायरमेंटल फैक्टर के हिसाब से चेंज होता है, यहाँ दिन है तो वहां पे रात है ना। तो खाना भी इसीलिए चेंज होता है कि चीज बोलते हैं कि ये इसके साथ जो डिशेस भी हमारे बनते हैं हर एक जगह के, वो भी इसीलिए थे क्योंकि वहां पे अगर आप रह रहे हो वहां के एनवायरनमेंट के लिए, आपकी बॉडी के आपके माइंड के लिए जो नीड है उसके हिसाब से वो चीजें बनी, क्योंकि आप वहां पे रह रहे हैं तो आपको नेचर से कैसे कनेक्टेड रहे। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस नेचर के साथ कनेक्टेड नेचर। रहना है। यस, तो वो यस, दैट समझ इज में करेक्ट। लोगों को अब जाके धीरे धीरे चीजें आ रही हैं। हाँ, तभी हमारे इंडस्ट्री में, हीलिंग इंडस्ट्री में बोलने लग गए हैं कि अभी जो कलयुग का टाइम है वो जा रहा है, अब सतयुग हाँ। आएगा। तो कुछ ट्रांजिशन मोड चल रहे हैं जो कि कुछ सालों के रहते हैं, उसके बाद सतयुग आएगा। इसीलिए बहुत बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं हमारी दुनिया में। कभी कहीं कुछ हो रहा है, कभी बिकॉज ऑफ फायर या वॉर लाइक सिचुएशन, क्योंकि वो एक फेज जो है वो युग का खत्म हो रहा है। तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं जो न्यूमरोलॉजी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं हम, नेम वाइब्रेशन के थ्रू कनेक्ट करते हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं व्हेन यू गो इनटू दिस। आई अंडरस्टूड कि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा वास्ट कंसेप्ट है, जैसे ये यूनिवर्स है। जैसे जैसे आप यूनिवर्स को समझने लगोगे, यूनिवर्स आपको और अट्रैक्ट करती है, आओ ये भी समझो, आओ ये भी समझो, आओ इसके बारे में भी जानो। तो आई फील लाइक कि मेरे को भी ऐसे ही होता है कि हाँ, अब मेरी कॉलिंग यहाँ पे है, मुझे ये चीज अंडरस्टैंड करनी है। यू विल नॉट मतलब बिलीव मैम कि जब मैंने गुरुजी को ज्वाइन किया तो पूरा लास्ट ईयर के एंड से लेके जब तक मैंने उनको ज्वाइन किया, फ्रीक्वेंटली नंबर 333 वॉज देयर। कहीं भी जा रही हूँ, कुछ भी देख रही हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी, 333 वॉज देयर। और आई एम इन टू दिस, मैं आपसे एडमिट कर रही हूँ ये बात, आई एम इन टू दिस, फिर भी मुझे ये बात समझ नहीं लग रही थी कि 333 मुझे क्यों नजर आ रहा है। एंड वन फाइन डे वन ऑफ माई फ्रेंड, शी स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। तो मैंने उसको बोला कि मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आता है, एंड बट मुझे एक सवाल जरूर पूछना है। एंड मुझे ये सवाल, सो एंड सो सवाल आप पूछ के बताओ, आप करने लग गए हो, आप देख के बताओ। एंड शी सेड कि प्रश्न। जो भी है ना, इट्स योर राइट टाइम टू हैव अ गुरु। एंड मैम आप मानोगे, हाँ द तभी मोमेंट घंटी शी बजी। सेड, घंटी बजी, अरे 3 3, इसीलिए तो नजर आ रहा है दैट आई एम रेडी टू हैव अ गुरु इन माय लाइफ, हाँ। आई एम दैट मच राइट। सो आप मानोगे, विद इन अ वीक I finalized, my senses said go ahead with him. I finalized and I joined. और उसके बाद से मुझे 3 3 अब और ज्यादा फ्रीक्वेंसी में नजर आ रहा है। पहले तो 3 बार नजर आता था, अब 4 4 टर्म्स में नजर आ रहा है। एंड आई ऑलवेज से दैट आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव जॉइंड, आई एम इन द हैंड्स ऑफ अ गुरु। मे बी समथिंग एल्स विल कम व्हेन आई मूव फॉरवर्ड इन द जर्नी। बट यस, मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे ये चीजें आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करती हैं।
how these things started showing up, and if you understand, if you really believe, वो आपको actually indicate करती हैं कि now it's your time for move into this or do that. So ये angel numbers भी, these numbers are also, they connect you very deep. और मुझे पैनीज भी बहुत मिलती है मैम। रोड पे जाती हूँ, मुझे कई बार, मेरे पास एक बॉक्स मैंने लगा लिया है जिसमें बहुत सारी पैनीज इकट्ठी हो गई हैं। एंड वेन एवर आई फील लाइक कि अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है, आई टॉक टू माई एंजल्स नो। तो जैसे मैं वॉक करती हूँ तो आई कीप ऑन, ये चटर चलता रहता है उनके साथ कि ये हो रहा है वो हो रहा है। हाँ, कई बार मुझे क्वेश्चन भी आता है कि आर यू लिसनिंग मी, मुझे सुन भी रहे हो आप, समझ लग बस रहा है आपको मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं क्या शेयर कर रही हूँ। क्या होता है, एक दो दिन में मुझे पैनी मिल जाएगा। मुझे तो कई बार ऐसे होर्डिंग्स के थ्रू जवाब मिल जाता है, लाइक मैं सोचते जा रही हूँ, लाइक ट्रैवल में हम लोगों का तो है, ये यूनिवर्स से बातें चलती रहती है। तो मैं कुछ सोचती हूँ, कभी कभी नहीं भी सोचती, तभी भी वो उधर से कुछ पढ़ लेती हूँ, तो मुझे मालूम है मुझे जवाब मिला है, मुझे क्या करना है। और कभी कभी तो इतना क्लियर आ जाता है ना, लाइक जो पूछो उसका एग्जैक्ट जवाब आ जाता है, That is what synchronicities are starting happening in your life. तो बहुत So, बहुत होता है ये। actually this is magic life. यहाँ पे मैजिक हम देखते हैं, जो कि इस लाइन से जो कनेक्टेड नहीं है, जो अभी भी स्केप्टिक है स्पिरिचुअलिटी को लेके, क्वेश्चंस रहते हैं। मैं सिर्फ इतना, जो भी ऑडियंस हमें देख रही है, मैं सिर्फ उनको इतना बोलूंगी कि हमारे लिए नहीं, अपने ऊपर तो ट्रस्ट करके जस्ट ट्राई इट फॉर वंस। कोई भी मोडालिटी लो, कोई मोडालिटी नहीं लेनी है, जस्ट स्टार्ट सिटिंग इन साइलेंस, दैट्स इट। और कुछ नहीं, डेली 5 मिनट एटलीस्ट ट्राई, try to understand yourself, your senses, your body will start giving you indications, your body will give you directions कि now connect with that। हाँ, वो कनेक्शन बिठाना जरूर है, ये नहीं कि हाँ मुझे किसी ने बोला रेकी कर लो तो हाँ सोचते हैं करते हैं हो जाएगा कर मीन्स यू आर लेंगे, नॉट कनेक्टेड yet। तो कर लेंगे तो फिर तो हो गया, फिर वही, नहीं जैसे कुछ। तुमने कहा कि सिंपल चीजें भी बहुत हेल्प कर सकती हो, शुरुआत तुम सिर्फ 5 मिनट से करो। मैं वही बोलती हूँ कि अगर कि जैसे कहा कि मेडिटेशन करना नहीं समझ में, तो सिर्फ 5 मिनट आंख बंद करके बैठो, है ना। 5 मिनट सिर्फ, या तो चलो 3 बार सिर्फ मंत्रा चैंटिंग, या सिर्फ 5 मिनट ग्रीन ग्रास पे थोड़ा खुले पैर वॉकिंग करो, है ना। कुछ शुरुआत तुम इतने से भी करो ना, तभी भी बहुत तुमको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, यू स्टार्ट सीइंग दैट। बस कनेक्ट, यूनिवर्स बोल रहा है मेरे साथ कनेक्ट तो करो, मेरे से तुम्हारे पास सारे सवालों के जवाब है, मेरे पास सारे रास्ते हैं, मेरे पास लोग हैं जो तुम्हें हेल्प करेंगे, लेकिन अलाइन तो करो तुम। डेफिनेटली मैम, आपने जैसे कहा कि लोगों को कहा जाता है कि 5 मिनट बैठो शांति से या ग्रीन ग्रास पे वॉक कर लो, तो ये चीजें जितनी सुनने में आसान है, चलिए मैं इसको इस वे से पुट करती हूँ अपनी ऑडियंस के लिए भी। मैं सिर्फ एक हाँ, सवाल करती हूँ उनसे कि आई नीड आंसर फ्रॉम यू। सब कुछ बदल रहा है, एवरीथिंग इज चेंजिंग, बट टेल मी, क्या भगवान ने जो ये बॉडी बनाई है, ह्यूमन बीइंग बनाई है, इस मशीनरी को चेंज किया है? क्या हमारी आंखें चेंज कर दी हैं, उसकी जगह चेंज की है, या नाक की, या बोलने की, या खाने की, या कुछ भी है? हमारे हेयर्स क्या कहीं और ग्रो करने लग गए, या बॉडी में लंग्स की या हार्ट की पोजीशन चेंज की है? नहीं की। हम्म, तो वाई हमें क्वेश्चंस आने लग गए हैं कि शुगर कम खानी चाहिए, जबकि बॉडी वैसे मेंटेन की जा सकती है। अर्लियर अगर हम सतयुग देखें या पुराने, अगर मैं भी अपने पेरेंट्स को देखूं, वो गुड़ खाते थे, जैगरी दे यूज टू ईट, वो शुगर लेते थे, शुगर केन खाते थे, और उनकी बॉडी डाइजेस्ट करती थी। तो आज हमारी बॉडी, जब भगवान ने बॉडीज तो सेम रखी, क्यों हमारी बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही? जस्ट आई वांट दिस आंसर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उस टाइम पे लोग अपने से कनेक्टेड थे, इस टाइम पे लोग अपने से कनेक्टेड नहीं। नहीं, उस टाइम पे जो स्पिरिचुअलिटी थी वो बाय बर्थ राइट लोगों में होती थी, उनको पानी नहीं पड़ती थी, उनको रिलीजन के लिए वर्कआउट करना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी कि व्रत रखो, इतनी देर पूजा करो, इतनी पौड़ियां चढ़ के माता के जाओ, ये करो। आज के टाइम पे हमें बाय बर्थ क्या मिला है? रिलीजन। हमें हमारे पेरेंट्स से रिलीजन तो मिल गया, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन टूट गया है, वही जैसे वो तुमने कहा, ये ब्रोकन। पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक कि पहले वालों को मेहनत करनी पड़ती थी कि फास्ट रखो, ये इतना ये करो, है ना, एक दूसरे से, क्योंकि उनके पास और कोई जरिया नहीं था लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए। अब आजकल लोगों ने अभी तुम्हारे पास सब कुछ है,
फोन है, वाईफाई है, आराम से किधर भी कनेक्ट कर सकते हो। जब तुम्हारे पास इजीली एक्सेस है चीजें, तो व्हाई नॉट मेक दिस बेनिफिट ऑफ इट, लाइक कि तुम इजीली फास्ट तरीके से कर सकते हो। इनफैक्ट चीजें फास्ट मूव हो रही है, तो तुम इस जर्नी में भी फास्ट मूव हो सकते हो, है ना। ये ठीक है, पहले Yes. पॉल्यूशन नहीं था, अभी पॉल्यूशन है। पहले करते थे लोग फिजिकल मेहनत इतनी करते थे कि उनको इतनी करते जरूरत नहीं पड़ती थी कि खास जिम जाओ या एक्सरसाइज करो, है ना। उसके लिए अलग से थे वो जो करते थे ना, क्या बोलते करते हैं, हाँ, कबड्डी और घर वो के सारे अखाड़ा काम। टाइप। अभी हाँ, तो अभी मशीन्स वो हैं सब नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, हाँ, तो अभी अभी क्या, अभी हमारे पास चलो चटनी पीसने के लिए भी मिक्सर है, ये वो, तो हम लोग का नहीं होता। इसलिए आप देखोगे कि योगा में भी अगर जब स्टार्टिंग की कुछ एक्सरसाइज करें तो यही सब कराते हैं, यही सब कराते क्योंकि तुमने हैं द ये कहीं मूवमेंट में। तुम्हारा चला गया तो यू हैव टू डू इट, है ना। तो हाँ, ऐसे नहीं तो ऐसे रिप्लेस करना ही है हमें। करना ही है। वही तो वो मैंने कहा ना कि रिलीजन तो हम ले आए, लेकिन स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी छोड़ कहाँ के है? आए, जब हाँ। आप वर्कआउट करते हो वो स्पिरिचुअलिटी। इट्स नॉट कि मेडिटेशन ही करना इज स्पिरिचुअलिटी। आपकी बॉडी वर्कआउट कर रही है, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी ओनली, बिकॉज आप उस टाइम आपको पता होता है मेरे हाथ ऐसे जा रहा है, मेरा पाँव ऐसे जा रहा है, मेरा दिमाग, मेरा फोकस, मेरी आईज इस डायरेक्शन में रहेंगी तो ही ये प्रॉपर वर्क करेगा। अभी हम उस टाइम पे, जैसे आपने चटनी का उदाहरण दिया मैम, हम जब वो ऐसे करते थे तो हमारा जो आई साइट रहता था वो हाँ, प्रॉपरली ऐसे वर्क हाँ, करता था, उसकी घूमता आइस था। की होती थी, हाँ। आईज की एक्सरसाइज हो रही थी। अभी क्या है? अभी एक बटन छोड़ते हैं फोन पे, ऐसे 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 करते रहते हैं और दैट्स इट। और ना आई की एक्सरसाइज हो रही है ना हैंड मूवमेंट। तो स्पिरिचुअलिटी आज के टाइम पे हमें अर्न करनी पड़ रही है, जो और कि इस डिफिकल्ट हो हाँ, रहा है। और ये सब काम से क्या हमारे ऑरा भी क्लेंस होते रहते हैं, लाइक यू नो दोज डोंट नो अबाउट ऑरा, कि हमारे जो साइड में पूरा ऑरा रहता है, हम पूरे दिन लोगों से मिलते हैं, करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी से, तो कहीं ना कहीं हम ऑरा में अटकते हैं। बट व्हेन यू डू दिस ऑल दिस वर्क एंड एक्टिविटीज, यू आर क्लेंजिंग योर ऑरा ऑल्सो। और तो फिर ऑरा लेवल पे ही अगर क्लेंस हो जाएगा तो बीमारी लेवल तक आएगा भी नहीं ना। आएगा, आएगा ही नहीं। डेफिनेटली वेरी ट्रू, ट्रू यू सेड मैम कि ऑरा रीड करना या ऑरा को समझना भी एक कला है, एक नॉलेज है, एक ट्रस्ट है। अगेन साइंस से टोटली बैक्ड है, लेकिन लोग फिर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं क्योंकि हम उसको सिर्फ देख नहीं सकते। दैट्स इट। बट मेरा सवाल यही रहता है, ऐसे तो आप अपने ऑर्गन्स को भी नहीं देख सकते हो ना। आप तो नहीं अपने ऑर्गन्स दे सकते। हाँ, कुछ डायग्राम्स कहीं से मिल गई हैं, वो ऐसे शेप की हैं, लेकिन एग्जैक्टली कैसे है, आपके लंग्स कैसे नजर आते हैं, आपके पैनक्रियाज कैसे नजर आते हैं, आपने नहीं देखा। बट यू बिलीव, क्योंकि वो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म में और एक्स वाई जेड फैक्टर में वो आपका हेल्प आउट कर रहे हैं, इसलिए यू बिलीव। लेकिन वहीं पे अगर हम ऑरा देख नहीं पाते हैं तो हम बिलीव ही नहीं करते कि हाँ ऑरा है, वेयर एज इट इज देयर। और वो अट्रैक्ट करता है। जैसे बॉडी हमारा हमारे लिए ग्लूकोज प्रोड्यूस करती है, इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, हॉर्मोन्स, वैसे ही हमारा ऑरा हमारे लिए अट्रैक्ट करता है नेगेटिविटी को, डिजीजेस को, नेगेटिव थॉट्स को, डिप्रेशन को अट्रैक्ट करता है। वो बॉडी ऑर्गन्स जो वर्क करते हैं वो तो बायोलॉजी में सब डिफाइन कर दिया साइंस वाले लोगों ने ना। लेकिन जो ऑरा में हम अट्रैक्ट करते हैं, वो आज की टाइम में डेफिनेशंस जो आ रही हैं डिप्रेशन की या एंगर की या ओवर थिंकिंग, ब्रेन फॉग, वो एक्चुअली अब न्यू लग रही हैं लोगों को। वेयर एज वो पहले से ही एग्जिस्ट Okay, है। yeah. वो है वहां पे। जस्ट कि हम देख नहीं सकते डज नॉट मीन कि दे डोंट एग्जिस्ट। ये बात बहुत सही है करके, क्योंकि ये यस। अभी लोग ठीक है, एक्सेप्टेंस अभी लोगों में आ रहा है, अरे समझ रहे हैं धीरे धीरे। एंड ठीक है, चाहिए भी ऐसे लोग क्वेश्चंस करने के लिए जो लोग नहीं समझे, तभी तो हम जैसे लोगों को भी ठीक है, एक घंटी बजती कि नहीं, अब हमें इनको इस तरीके से प्रूव करके दिखाना। बताना तो है सब। समटाइम्स यू नीड सम चैलेंजिंग पीपल आल्सो टू यू नो पुश you also to come reach at a level where you have still not reached. So दोनों तरह के लोग चाहिए थे, क्योंकि उनकी उनकी जर्नी शायद इसीलिए ही होगी कि हमें हमें ऊपर पहुंचाए हमारे लेवल पे। यस मैम, ये मैंने अपने क्लाइंट्स की जर्नी में बहुत बार देखा है। बहुत सारे चैलेंजिंग क्लाइंट्स आ जाते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली जिसका मैंने जिक्र किया, हाँ, वाज लाइक कैसे बोल दिया आपने, मत बोलो, मुझे बोलना है। आई वाज हाँ, लाइक कि तुम बोलोगे तो। और उसने ट्राई किया और वो बुरी तरीके से फंसा बोल के। बोला भी उसने, ऐसे नहीं था कि मुंह पे बोला है, उसने इनडायरेक्ट एक ईमेल भेजा था, जो जिस ईमेल को उस लेडी ने एज अ टूल यूज कर लिया कूप, जिसकी वजह से प्रोसेस और लेट हुआ। तो उसका चैलेंज जब उसने मेरे लिए खड़ा किया ना, तो इट वाज चैलेंजिंग फॉर मी आल्सो, इट वाज अ लर्निंग फॉर मी आल्सो। हम्म, और टैरो में मैंने ये बहुत जबरदस्त सीखा है मैम, आप भी रेजोनेट करोगे इस बात से कि
ये नहीं कि सामने वाला ही सीखता है, हम भी हम सीखते भी सी हैं। टैरो रीडर हम भी लर्न करते और हैं, कई हमारे बार साथ कार्ड्स हमारे लिए भी निकलते हैं। हमारे लिए भी वो भी आते हैं। समझना पड़ता है उस बीच में कि रीडिंग के दौरान कोई एक कार्ड हमारे लिए निकलता है, हमें समझ में आता है कि इस पर्सन के लिए तो ये रेजोनेट, ओ अच्छा मुझे गाइड मिला है कि मेरे को ये बोलना है और ये नहीं ये बोलना है, ये करना है, क्योंकि ये पर्सन अभी इस चीज के लिए रेडी है या नहीं, जो रेडी भी है नहीं। मतलब। बट वो हाँ, कार्ड हमें भी बीच में गाइड करते हैं। तो दिस इज रियली अ फैसिनेटिंग थिंग व्हेन यू कनेक्टेड टू दीज मोडालिटीज। मतलब मैं एक टीचिंग लाइन से जब इस लाइन में आई, इट वाज वे डिफरेंट, मोडालिटीज डिफरेंट। मेरी जो नेटवर्किंग है वो अभी भी उसी लाइन की है, लाइक प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स एंड कलीग्स जो भी हैं वो उसी लाइन के हैं। एंड समटाइम्स वो मेरे को बोलते हैं, समटाइम्स तू जो बोलती है ना हमारे ऊपर से निकल जाता है, हमें समझ ही नहीं लगता रिएक्ट कैसे करें। एंड आई एम लाइक कि दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, स्टार्ट लिसनिंग। कहीं और नहीं तो मुझे ही लिसन कर लिया करो, सुनो, एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड वे मोर। वही जैसे लाइक तुमने ये कहा कि हम फिंगरप्रिंट्स भी जो हम करते हैं, फिंगरप्रिंट एनालिसिस से, उससे भी लोगों को अपनी लाइफ लेसन्स और लाइफ पर्पस भी मालूम पड़ते हैं। कि जैसे तुमने बोला उसका लाइफ लेसन ही वो सीखना था कि चुप करके दूसरों का सुनना सीखो। अगर तुम एक स्टेप वो पार करोगे तो तुम बाकी चीजों में तुम कितने भी अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी एक चीज वो खराब कर देती है। तो कौन सी तुम्हारी स्ट्रेंथ है, कौन सी तुम्हारी वीकनेस है, वो समझो और उसमें तुम आगे बढ़ सकते हो। तो ये सी मोडालिटीज अलग अलग है, हर कोई तुम्हें लेकिन जवाब वही देगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है। जो तुम्हारे लिए, यस, तो दैट कोई भी इज व्हाई द मोडालिटी यूज करो, लेकिन उसको यूज करके जो हीलर्स या जो काम लोग रीडर्स बोलते हैं आपको, उनको सुन के इम्प्लीमेंट करो। ट्रस्ट, आई थिंक हमारा इसमें पूरे इसमें ट्रस्ट ही सबसे मेन फैक्टर आ रहा है। हाँ, और ये भी एक छोटी सी बात ये भी ऐड ऑन करना चाहूंगी, इट्स नॉट अबाउट कि सब पॉजिटिव ही होता है इन मोडालिटीज, हाँ। नेगेटिव ऑल्सो कम्स आउट। आपके बहुत सारे ट्रॉमास बाहर आते हैं हम्म। एंड यू शुड बी रेडी टू फेस देम। या। जब मैंने अपने फादर की जर्नी को समझने की कोशिश की कि व्हाई ही फॉल्स इनटू दिस डिजीज, मेरे सामने आया कि उनकी लाइफ में कुछ ट्रॉमास थे जिस वजह से उन्होंने अट्रैक्ट किया वो डिजीज। तो वो जब इंसाइट्स आनी शुरू हुई, जब मैंने शायद न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करके पाया कि नहीं उनकी लाइफ में ये ब्लॉकेज था जो हाँ। कि अदरवाइज वी वर नॉट अवेयर, आई वाज लाइक कि मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव नोट पे नहीं था, वो बहुत हाँ। नेगेटिव नोट पे था, जो कि जिसे हम कर्मा लेवल पर बोल सकते हैं हाँ। ना, टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही होती हैं, हम फेल भी होते हैं। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं कि मैं एंजल से कनेक्ट किया, वो एक साल में मैं बहुत बार फेल हुई। मैंने तो जाके एक साल के बाद उनसे कनेक्शन पाया, लेकिन जब मैं फेल हुई हूँ मैं बहुत रोई भी हूँ कि मेरा हार्डवर्क जीरो हो जाता है, मेरा हार्डवर्क जीरो हो जाता है। मैं डेली टाइम कर रही हूँ, निकाल रही हूँ, कंसिस्टेंसी कर रही हूँ, व्हाई यू आर नॉट लिसनिंग टू मी? हम्म। ऐसा क्या आप सब करते हैं कि आप उनसे जल्दी मिल लेते हो और मेरे से नहीं मिल रहे? बहुत सारे सवाल मुझे भी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे ब्लॉकेजेस पे मुझे अपने पे वर्क करना पड़ा मैम, टू कनेक्ट टू देम। It is not always a smiling face with these modalities. You have to have that sad face जो निकलते हैं आपके अंदर से, इमोशन ट्रिगर्स, एंड आप समझते हो कि हाँ ये मेरा, एंड यू सरेंडर टू देम। या एंड दैट। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग मैम, हीलिंग मोडालिटी में आपको सरेंडरिंग आ जाती है। बहुत। अगर एक एक और आपसे एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, तो रिसेंटली मतलब मेरे पर्सनल नोट पे है ये एक्सपीरियंस कि कुछ 4-5 सालों से आई वाज वर्किंग बिहाइंड द सीन, आई वाज वर्किंग फॉर वन थिंग। सो उसमें बहुत लिटिगेशन थिंग्स भी मतलब इन्वॉल्व थी। तो आई वाज वेटिंग फॉर द जजमेंट फॉर मी। तो वो जजमेंट मेरे फेवर में पास नहीं हुआ। तो आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माय गुरु, माय कृष्णा। तो मैं कृष्णा जी की पूजा करती हूँ तो सेवा भी करती हूँ। तो आई वाज लाइक कि जजमेंट शुड बी इन माय फेवर, बट जजमेंट मेरे फेवर में नहीं था। 3 दिन वो जजमेंट मैम रुका रहा, मेरे तक नहीं पहुंचा। मेरे कृष्णा जी मुझे रेगुलर इंडिकेट करते रहे दैट ही इज नॉट हैप्पी, मतलब उनके फेस पे वो हैप्पी वाला वो जो मैं देखती हूँ नूर, वो मुझे नहीं नहीं नजर आ रहा। है। तो तीसरे दिन इट वाज लाइक मैंने सरेंडर किया, ओके आई एग्री। अगर नहीं जजमेंट आएगा आफ्टर 5 से 6 साल से मैं वो लिटिगेशन में फंसी हुई थी, ठीक है, अगर नहीं आएगा आई एग्री, बट आई प्रॉमिस आई विल कम टू यू। मैंने प्रॉमिस किया था कि वो लिटिगेशन मेरे फेवर में आएगा ना,
तो आई विल विजिट यू। तो लेकिन वो मेरे फेवर में नहीं आया। 5 से 6 साल बाद मतलब वो दिन आया कि मुझे वो था कि मेरे फेवर में होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। जब आप देखोगे मैम कि मैंने द मोमेंट आई सरेंडर्ड ना कि यस ठाकुर जी, whatever you will bring to me I accepted and I will still come to you। वो जजमेंट 3 दिन के बाद पास हुआ जो कि मेरे फेवर में नहीं था। आई स्टिल वेंट देयर। मैं दर्शन करने गई हूँ और बहुत मुश्किल से मुझे दर्शन हुए हैं, लेकिन ठाकुर जी ने अपने ही दर्शन मुझे 2 से 3 बार अपने ही जगह पे गेड़े लगा के करवाए। मतलब मुझे जाने नहीं दिया कहीं और भी, बार बार मुझे वहीं पे बुलाया। एंड द मोमेंट आई केम बैक, मैम मेरी लाइफ में ऐसे मैजिक हो रहे हैं ना कि वो लिटिगेशन की जजमेंट जो है वो रियल लाइफ में पास ऑन हो रही है मेरे। मैं देख रही हूँ वो मैजिक मेरे सामने हो रहा है। जो मैं चाह रही थी वहां से वो मुझे ये यहाँ से मिल Yes. रहा है। Oh. मतलब मैं डोर नहीं समझ पा रही थी, मैंने शायद डोर गलत नॉक किया हुआ था, जबकि कृष्णा जी ने अब मुझे एक सही राह पे लाके खड़ा कर दिया कि देख तुझे मैं दूंगा, लेकिन रास्ता तेरा ये नहीं था, तेरा रास्ता ये है। ये और इन 5 से 6 सालों में आई वॉज कंसिस्टेंट, आई वॉज हैविंग दैट बिलीफ। मैं बहुत बार गिरी हूँ, बहुत रोई हूँ उस चीज के लिए, और नहीं भी जजमेंट, और मुझे ये भी पता था एक बार जीरो हो गया तो वो मेरे फेवर में कभी नहीं होने वाला। फॉर फुल लाइफ टाइम आई हैव टू बी विदाउट दैट थिंग। पर अब मुझे वहां से मिल रही है डायरेक्टली, क्लियरली मैजिक देख रही हूँ मैं अपनी लाइफ। दिस इज वेयर आई सेज दैट की ट्रस्ट, हैव ट्रस्ट। मे बी द टाइमिंग्स वर नॉट करेक्ट, नाउ द टाइम हैज अराइव्ड। एंड समटाइम्स वी डोंट रियलाइज ऑल्सो कि कोई चीज हमारे लिए एक्चुअली वो अच्छी नहीं है, इसीलिए हमको नहीं मिल रही। नहीं, देयर इज समथिंग बेटर ऑल्सो वेटिंग फॉर अस। बट yes, एज यू सेड, व्हेन यू सरेंडर इट कि ठीक है, एंड देन यू सी द मिरेकल्स, एंड या दैट्स ट्रू, एक्चुअली वेरी ट्रू। वेरी ट्रू मैम। सरेंडर हैज वे बैक पावर। बहुत पावर है एक साइलेंस में, एक सरेंडर में। मैंने अपनी लाइफ में बहुत देखा है, जब मैं चुप हो जाती हूँ ना मैजिक्स होते हैं। जब मैं सरेंडर करती हूँ ना उसके सामने, मतलब जिद छोड़ देती हूँ कि ठीक है अगर नहीं है इस लाइफ में वो मेरे लिए तो लेट इट बी। द मोमेंट आई सरेंडर ना वो थिंग्स शिफ्ट। हाँ, ये नहीं है कि सडनली, इट इट वॉज अ ग्रेजुअल थिंग, धीरे 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 हुई है। लेकिन टुडे आई फील दैट कि ये मैजिक हो रहा है। वो मेरे लिए नहीं था, लेकिन उससे बेटर कुछ है मेरे लिए, लेकिन है वही, बट वे मोर बेटर। पर मैं बता रही हूँ मैम, मैं वो 3 दिन जब मैंने सरेंडर नहीं किया था ना, वॉज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। those things were understanding that concept was very difficult। मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी कि 5 से 6 साल हो गए रे भाई, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, दिन रात एक कर रही हूँ इस चीज के लिए, इतना कुछ लर्न कर लिया कि ये चीजें मुझे मिले और अप्लाई भी कर दी, एंड फिर नहीं हो रही है। दैट मीन्स समथिंग इज मोर फॉर मी, एंड दैट वाज अ तो वही मैजिक। बोलते हैं ना मैंने कि ठीक है, आप चाहो, आप इंसान हो, आप चाह सकते हो, आप जो चाहते हो वो आपको देगा, भगवान देगा, ठीक है। आपको जो चाहिए मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मैंने एक आपके लिए एक एक बहुत अच्छी चीज रखी है। आपको वो चाहिए मुझे कि नहीं आप पता जो था। चाहते हो वो बताओ आप। तो हम जो चुनते हैं ना रास्ता, फिर हमें वो मिलता है। एक मैंने चुना है, एक तुम्हारा चुना हुआ है। अगर वो दोनों अलाइन हो रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं अलाइन हो रहे तो वो ऑप्शन देते हैं हमें। और उधर हमारा यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट काम आता है कि हम तब वो रास्ता कौन सा चुनते हैं। एज यू टोल्ड सरेंडर, ओके आई एम सरेंडिंग, आई एम सेलेक्टिंग योर वॉट एवर रोड यू हैव डिसाइडेड। तो फिर वो चीज हो जाती है हमारे साथ। अलाइन हो गए, यस। तो ये है, वेरी ये तो काफी काफी स्टोरीज मेरे साथ भी है, काफी लोगों की सुनी भी है मैंने। तो ये ऐसा होता है। yes, magical line. This line is magical. Just you have to learn, be patient, be silent, and surrender. Things will happen for you. Things are just waiting for the right time. और ऐसे तो मैम मैं बात करती रहूंगी तो मैं बहुत कुछ बताने के लिए रेडी हो अच्छा, जाऊंगी। मैं तुमसे ये जानना चाहूंगी कि तुम्हारी गोल्डन सनराइज ग्रुप में क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तुमने काफी सेशंस अटेंड भी किए हैं, काफी दिए भी हैं, तो तुम्हें कैसा फील, एक्सपीरियंसेस तुम्हारे क्या रहे? तो एज यू सेड मैम कि आपने अपॉर्चुनिटी दी और मैंने ग्रैब की। हम्म। और ये अपॉर्चुनिटी ही होती है मैम जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है हमारी लाइफ, टू शो व्हाट स्किल्स वी हैव।
तो सबसे पहले तो आपके लिए आपको मैं शुक्रिया अदा करूंगी। थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड टू यू कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, आपके ग्रुप के बारे में बताया, एंड आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स माय ओन थिंग्स विद यू, थ्रू यू इन द ग्रुप। एंड वहां से लोगों को मेरे बारे में पता लगा। यही एक एक्सपोजर था जो मिसिंग था मेरी लाइफ में, जो आपके ग्रुप से मुझे मिला। लोगों ने समझना शुरू किया इन मोडालिटीज को, एंड दे स्टार्टेड टर्निंग इनटू माय सेशंस। नहीं तो आजकल अगर आप रेट देखो तो लोग जल्दी से सेशंस में आते भी नहीं है। हाँ। तो दिस इज व्हाट आई हैव रिसीव फ्रॉम योर ग्रुप। So thank you so much, ma'am, for giving me such opportunities to be the part of your group and allowing me to share my knowledge which I have। And वो सेशंस भी जो हमारे ग्रुप में और भी लोग लेते हैं, उनकी नॉलेज मिली, समझ में आया कि चीजें कहीं और भी कनेक्ट होती हैं। इट्स नॉट जस्ट माई मोडालिटीज, और भी बहुत सारी मोडालिटीज हैं। तो आई एम इन ग्रेटिट्यूड मैम, थैंक यू सो मच। आप एक वो एक जैसे वो हमारे टैरो में वो कार्ड रहता है हाई प्रीसेस का, जिसमें शी इज लाइक कि ना, शी इज सिटिंग ओवर अ थ्रोन एंड प्रोटेक्टिंग कि हाँ यस, इसको भी ऐसे करने दो, इसको भी करने दो। तो एक वो वाला एक बैक सपोर्ट रहा है आपका कि हाँ, लेट हर डू, कुछ तो होगा। सब कुछ अच्छा नहीं तो लेकिन कुछ तो चेंजेस होंगे। ये जो आपकी रहती है ना हमेशा वाली आदत की हाँ कुछ तो होगा, कुछ तो होगा ना, गो फॉर इट, कुछ तो होगा, वो एक्चुअली वो चाहिए बीइंग वो इन मुझे दिस रहा इंस्टीट्यूट। स्टार्टिंग में, कितने लोगों को बूस्ट करना पड़ा था कि नहीं, लेकिन अगर लोग नहीं आएंगे तो, अगर दो, मैंने बोला अगर एक इंसान भी तुम्हारा सेशन अटेंड करते तुम वैसे ही दोगे जैसे तुम 10 लोगों को दोगे। एंड दिस एक्चुअली हेल्प पीपल अ लॉट, या तो वो थैंक यू सो काफी मच अच्छा था। मैम और फॉर तुम दैट। फ्यूचर क्या, और क्या सजेशन तुम्हारे अगर कुछ है, या क्या और तुम देना चाहोगी इस ग्रुप को, या तुम चाहती हो इस ग्रुप से? अभी तक तो यही है कि मैम कि लेट्स कीप ऑन डूइंग सम सेशंस, कुछ ऑफलाइन भी जाते हैं, कुछ रिट्रीट टाइप कुछ प्लान करो, सो दैट कि एक आमने इंटरेक्ट, सामने जो नाम के एनर्जीज सामने। एक्सचेंज होती हैं, लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो ऐसे सबके बीच में नहीं कोई बोल सकता, बट अदरवाइज पीपल कैन कम एंड शेयर विद अस एंड दे कैन डायरेक्टली फील अस, आवर प्रेजेंस एंड एवरीथिंग। सो ये जरूर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि वी शुड हैव अ रिट्रीट और समथिंग ऑफलाइन for 1 day or 2 day depending upon the audience। and फिर वहां से हम अपना कुछ कोर्सेज वगैरह दे सके लोगों दिस, को, which they हाँ। are actually they should know how to move ahead into aura, creating aura, building chakras and working on chakras। and yes, these are the things I would suggest कि हमें अपने ग्रुप में शुरू करनी चाहिए। Surely. I'll keep on doing that. With this, we'll have just one small rapid round session with you. Yeah? Yes ma'am। So what I am supposed to do? Just एक simple questions है उनके, तुम्हारे तुम्हारे सोच क्या है उसके लिए, या what do you do or you think about it? Like empathy or truth? Which do you choose for first? Truth. Okay. Silence or sound? Which calms you more? Silence. Teach or learn? Which feels more lighter? Learn. Alone or together? Where do you grow most? Together. Quick change or slow growth? Slow growth. Okay. Destiny or free will? Destiny. Family or friends? Who shapes you more? Family. Success or fulfillment? Fulfillment. Change or acceptance? It depends upon situation. Sometimes I have to accept, and sometimes change is actually the required thing. So it depends upon the situation. Yeah, that's true. Journey or destination? What do you? Journey. In this case, it's a journey. Okay, very nice. This was just a simple rapid round question. So, Thank you, ma'am. yeah, it's really nice talking to you, Lippy. And like, I'm really enjoying. I always enjoy when whenever I'm with you. So I would really like to thank you very much, Lippy, for giving this wonderful time of yours and sharing all this
lovely experiences. I'm really thankful to universe also for giving me all these opportunities with you. Thank you so much, ma'am. From my side, also the same. I want to reciprocate to you that you have given this opportunity not only to me but to many other, Yeah. healers also. And we all felt that same gratitude for you, for the group you are, the community you are trying to build. That if one can help you out, now then things will move in your life. Yeah. Your experience, your guidance for that case, for any matter that ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं हो पा रहा तो इसको drop कर देते हैं, everywhere where you stand with us, that is actually required for a new beginner, for a healer to move into this industry or have that kind of patience or stability that yes कोई तो है जो मुझे guide कर रहा है and in the right direction. So thank you very much, ma'am, Jyoti ma'am, for this support and guidance always. एंड इवन आई एम थैंकफुल टू यूनिवर्स कि हमने आज ये पॉडकास्ट शूट किया. आई शेयर्ड माय एक्सपीरियंस जो मैं हार्डली किसी के साथ शेयर करती हूँ. एंड नाउ यू नो मी बेटर ऑल्सो व्हाई आई एम लाइक दिस. एंड आई इवन नो बेटर यू ऑल्सो दैट कि आप भी यूनिवर्स की इस जर्नी में कहीं ना कहीं अलाइंड हो मेरे साथ. समवेयर समथिंग आर कनेक्टेड, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस. एंड जो इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, आई एम श्योर कि दे विल ऑल्सो हैव ब्यूटिफुल इंसाइट्स कि क्यों हमें इस लाइन को चूज करना चाहिए, कैसे फेथ रखना चाहिए, कैसे डिटर्मिनेशन वर्कआउट होती है. एंड समटाइम्स फेलियर्स डू ऑल्सो अटैक अस ऑल्सो. इट्स नॉट कि हमारे लिए सब तरफ से सक्सेस ही है, ऐसा कुछ नहीं है. हमें भी हमारे फेलियर्स, लेसन्स, कर्मा लेसन सब देखने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं. इट्स जस्ट कि हम कनेक्ट करते हैं उनसे एंड हाँ. वी टेक देम इन अ पॉजिटिव नोट कि मे बी समथिंग मोर इज देयर. That's really good. I'll just have few lines with you. Like each frequency have their own energy. Frequency keeps changing, but our healing journey will continue, and we'll keep meeting and remain connected. So keep shining with golden sunrise and let the trust and love for us grow. Yes. And for all the viewers who are watching, keep watching this show. We'll have more healers and healing of Golden Sunrise, and even others also will come share their experiences with you. So, like, share, and subscribe to this channel. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you very much, Lippy. Thank you. Thank you, ma'am.